حمزہ ریشم کی اس سچائی پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا جو اسے واپس آنے پر پتہ چلی تھی۔ وہ بے حال سا ریشم کے کمرے میں چلا گیا اور وہاں اس کی نظر ایک خط پر پڑی۔ ساری سچائی اس کے سامنے تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ ثاقب ایک درندہ ہے۔ دوسری طرف ثاقب خانم کے کوٹھے پر پہنچ کر ریشم کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا، اور جب حمزہ وہاں پہنچا تو ریشم ثاقب کی ہوس کا شکار اس کی باہوں میں۔ عورت ذات نے ہمیشہ مرد کو شک کی نظروں سے ہی دیکھا ہے۔ ریشم، کاش کہ تم دیکھ سکتی آج ایک مرد عورت کی محبت میں کتنی بے بسی سے رو رہا ہے۔ تم نے بھی مجھے اور میرے دل میں بسنے والی اس بے تحاشا چاہت کو عام ہی جانا۔ تم کیوں نہیں سمجھ سکی میرے وہ سچے احساس، جذبات جس میں تمہارے سوا کبھی کسی کا گزر ہوا ہی نہیں۔ میں بار بار تم سے تمہاری اداسی کی وجہ پوچھتا رہا، لیکن تم مجھے غیر سمجھ کر ہر بار ٹالتی رہی۔ کاش تم مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھتی۔ تمہیں اس گھر سے گئے بس کچھ گھنٹے ہی گزرے ہوں گے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر برسوں سے ویران اور میں ہمیشہ سے اکیلا ہوں۔ کیوں آئی تھی تم میری اس ویران زندگی میں؟ اب یہ میری زندگی تمہارے بنا کیسے گزرے گی؟ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی تم کیوں نہیں نکل پا رہی میری زندگی سے؟ یہ دل کیوں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ تم… وہ اپنی آنکھوں میں نمی لیے ریشم کی یادوں میں بے قرار بھوجل قدموں اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اسے خوشبو کا ایک اچھوتا سا جھونکا اپنے آس پاس سے گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے ایسا گمان ہوا کہ جیسے ریشم ایک دم سے اس کے قریب آ گئی ہو۔ کمرے میں موجود اس کی ہر چیز بالکل اسی ترتیب سے رکھی ہوئی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ الماری میں رکھے اس کے کپڑوں سے لے کر پرفیوم، کاسمیٹکس اور بیڈ پر رکھا اس کا دوپٹہ، اس کمرے میں اس سے وابستہ سب کچھ تھا، لیکن نہیں تھی تو صرف وہی نہیں تھی۔ حمزہ بے سود سا ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیوں چلی گئی تم میری زندگی سے ریشم؟ کاش تم دیکھ سکتی کہ کتنا اکیلا کر گئی تم مجھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گیا۔ آج ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک اس کی نگاہ قالین پر گرے، ایک سفید کاغذ پر پڑی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس 4 تہہ بنے سفید کاغذ کو اٹھا کر جلدی جلدی سے کھولنے لگا۔ یہ کیا؟ وہ چونک سا گیا۔ یہ تو ریشم کا خط تھا جو اس نے حمزہ کے نام لکھا تھا۔ وہ خط کو شروع سے لے کر آخر تک توجہ سے پڑھنے لگا، لیکن اس کا دل اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ثاقب ماموں… یہ سوچ کر اس کی روح تک کانپ گئی، کیونکہ ماموں نے تو ریشم کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا تھا، لیکن ریشم کی باتوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عجیب شش و پنج کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اسے الجھن سے 2-4 وہ خط لے کر کمرے سے باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ ثاقب کو کسی سے فون پر باتیں کرتا دیکھ کر وہ ادھر ہی رک گیا۔ اسے کچھ لمحوں کے لیے زمین اپنے پیروں تلے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ریشم کے خط میں بیان کی گئی ایک ایک بات اب خون کے آنسو بن کر حمزہ کے دل پر گر رہے تھے۔ حمزہ غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ اسی دوران ثاقب کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ثاقب سر جھٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کرنے لگا اور آدھے گھنٹے میں خانم کو کوٹھے پر ملاقات کا بتا کر کال کٹ کر دی۔ حمزہ دیوار کی اوٹ لیے ثاقب کی ساری پلاننگ سن کر بنا دیر کیے بھاگتا ہوا صوبیہ بیگم کے کمرے میں پہنچ کر ان سے مخاطب ہوا۔ ماما اٹھیں، جلدی چلیں، کہیں جانا ہے ہمیں، فوراً، مزید دیر نہیں کر سکتے، پلیز ماما۔ لیکن حمزہ، اس وقت اتنی عجلت میں کہاں جانا ہے اور کیوں؟ کچھ بتاؤ تو۔ ارے بھائی، کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے آپا، وہ بھی اس وقت گھر میں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد۔ حمزہ بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ ثاقب نے اچانک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے صوبیہ بیگم کی بات میں مداخلت کی اور ایک فکر مند ماموں جی کا بھرپور کریکٹر پلے کرتے ہوئے نہایت معصومیت سے حمزہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ حمزہ نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، بس ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے ماما کو کلائنٹ سے ملوانا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کے سوگ میں اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ حمزہ نے سرد لہجے میں یہ سب کہا تو ثاقب بہت حیران ہوا اور دل ہی دل میں بہت خوش بھی۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے
रेशम का सोच रहा था कि जिस हमजा पर उसे इतना यकीन था, जिसकी मोहब्बत का वो इतना दम भरती थी, कैसे वो एक ही दिन में भूल गया उसे। यही हकीकत है। साकिब अपनी काली घनी मूंछों को ताव देते हुए तंजिया मुस्कुराते हुए बुड़बुड़ाया तो हमजा ने भी बनते हुए साकिब से पूछा, वैसे मामू खैरियत? रात के इस वक्त घर में इतना कुछ हो जाने के बाद इतना सज धज, इतनी तेज खुशबू लगाए आप कहीं जा रहे हैं क्या? हमजा ने भी चुपती नजरों से साकिब का सर से पैर तक जायजा लिया, जो गोल्डन रंग की शेरवानी में गले में सोने की चेन लटकाए तेज चुपती खुशबू में डूबा हुआ किसी बांके सजीले जवान की तरह उसके सामने खड़ा था। हमजा के सवाल पर साकिब दिल मिला गया और नजरें चुराते हुए गोया हुआ, हाँ बस कुछ जरूरी काम से एक पुराने दोस्त से मिलना है। मैं जाना नहीं चाहता था आज, पर दोबारा मौका नहीं मिलेगा शायद, इसीलिए जाना जरूरी है। अच्छा आपा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ये कहते हुए साकिब उजलत में वहाँ से निकल गया, जबकि सोबिया बेगम अपनी बात मुंह में ही दबाए चुप हो गई। तो हमजा ने उन्हें सोफे से पकड़कर खुद खड़ा किया और कहा, प्लीज मामा चलें प्लीज। कानों में ब्लूटूथ डिवाइस लगाए हमजा मुसलसल पुलिस के साथ राब्ते में था, जबकि सोबिया बेगम परेशानी की कैफियत में बार बार हमजा से एक ही सवाल करती, हमजा बेटा कुछ बताओगे अब मुझे, हम कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है सब? लेकिन हमजा की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर वो अपना सर पकड़ कर बैठ गई। इस बात से बिल्कुल अनजान के एक महदूद और मुनासिब फासला बरकरार रखते हुए हमजा साकिब की गाड़ी का मुसलसल पीछा कर रहा था। बहुत बड़ी हवेली के सामने साकिब ने अपनी कार रोक दी। कार से निकलकर दरवाजे पर दस्तक दी तो खानम अपने गार्ड के साथ खुद नमूदार हुई और साकिब को लेकर अंदर चली गई। लाउंज में आते ही साकिब ने शेरवानी से नोटों की गड्डी निकालकर खानम की तरफ उछाल दी तो खानम ने पागलों की तरह नोटों की गड्डी हथियाई और ऊपर एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, साकिब के आनी वहाँ है तुम्हारी रेशम। खानम ने हंसी दबाई तो साकिब ने तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा, इंजेक्शन दिया था तुमने? हाँ दे दिया था, लेकिन क्या खानम? साकिब दिल मिलाया, अरे कुछ नहीं, बस वो बहुत उछल रही थी तो आधा इंजेक्शन जाया हो गया, बहुत मुश्किल से दिया आधा भी, वो भी ये कट्टे जैसा मेरा आदमी साथ ना होता तो। साकिब भड़क उठा, क्या मतलब? उसने छुआ मेरी रेशम को? हाँ ना, तो और कौन देता इंजेक्शन? खानम पान चबाते हुए बोली, अरे फिक्र नहीं करो साकिब, बस इंजेक्शन ही दिया ने और कुछ नहीं किया, ये कमबख्त तो सारे का सारा मेरा है। साकिब सीढ़ियां चढ़ते हुए रेशम के कमरे की तरफ रवाना होने लगा, जबकि खानम गुस्से में बुरी तरह होंठ चबाते हुए गार्ड से मुखातिब होते हुए कहने लगी, कैसा मर्द है ये, एक पतली पतंग लड़की को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक उसे इंजेक्शन देकर नीम मुर्दा ना कर दे। ठरकी बुढ़ा फारिग है फारिग। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, मजीद कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ पहुँचने में? मैं ज्यादा देर इंतजार हरगिज नहीं कर सकता। हमजा ने सख्त लहजे में अपना फैसला सुनाया। देखिए हमजा साहब, हौसला रखिए, हमारा एक तरीकेकार होता है, एक प्रोसीजर होता है, ऊपर से जब तक ऑर्डर ना मिले, परमिशन ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सब्र रखिए, हम आधे घंटे में वहाँ मौजूद होंगे। आधे घंटे का सुनकर ही हमजा ने गुस्से में कॉल कट कर दी और सोबिया बेगम को कुछ देर के लिए बाहर गाड़ी में छोड़कर खुद हवेली के अंदर दाखिल हो गया, जिसका दरवाजा गार्ड उजलत में बंद करना भूल गया था। हमजा जैसे ही अंदर लाउंज में पहुंचा तो वहां खानम और उसके गार्ड को नाजीबा हरकत करते देखकर वो यकदम सटपटाकर मेज से टकरा गया। आहट सुनकर अपने ही गार्ड पर पूरी तरह से झुकी हुई खानम अपना सर उठाने लगी तो एक अनजान लड़के को अपने सामने देखकर बुरी तरह से चिल्लाने लगी, ओए कौन है तू और अंदर कैसे घुसा? किसने भेजा तुझे यहाँ? हमजा की तरफ से कुछ जवाब ना मिलने पर खानम शदीद गुस्से में अपने गार्ड पर चिल्लाने लगी। खानम अपने मखसूस अंदाज में आलती पालती मारकर पान चबाते हुए मुसलसल बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रही थी, जो हमजा के लिए बर्दाश्त करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। हमजा ने यकदम से मेज पर रखा डेकोरेशन पीस उठाया और अचानक गार्ड के सर पर दे मारा। हमला इतना अचानक था कि उसे ना मिला और वो उसी वार से ढेर हो गया। खानम जो नॉन स्टॉप बकवास कर रही थी, जोरदार आवाज से चौंक गई और अपने गार्ड को ऐसे जमीन पर ढेर देखकर उठ खड़ी हुई।
कौन है तू, किसने भेजा है तुझे, वो चिल्लाई तो हमजा ने घुराते हुए खानम को गर्दन से दबोच लिया और धारते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाया, चुप, एकदम चुप, वरना तुम्हें खामोश कराने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे। हमजा का जुनून देखकर खानम ने चुप होने में ही अपनी आफियत जानी। फिर हमजा ने खानम से जब रेशम का पता पूछा तो खानम ने चहक कर कहा, अच्छा तो वो छोकरी, वो अभी दस्तयाब नहीं है, अभी वो दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है। अगर वो तुझे चाहिए थी तो मुझे पहले बताता, काहे को ये सब ड्रामा किया, वो तुझे अब नहीं मिल सकती। बंद करो अपनी बकवास वरना हलक से जुबान खींच लूंगा और बताओ मुझे कहाँ है रेशम। हमजा ने गुस्से में खानम की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत की तो खानम ने शिद्दत तकलीफ से खुद को बचाने के लिए कमरे की तरफ इशारा किया और टूटी फूटी आवाज में कहा, रेशम वहाँ है। ये सुनते ही हमजा ने वही डेकोरेशन पीस खानम के सर पर भी दे मारा। जब खानम बेहोश हो गई तो हमजा ने फौरन बाहर जाकर गाड़ी में बैठी हुई सोबिया बेगम को अपने साथ लिया और सीढ़ियां चढ़ता हुआ खानम के बताए हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। हमजा बड़े बड़े कदम उठाता हुआ ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा। सोबिया बेगम की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो बस घबराई हुई कांपती कांपती पीछे पीछे चली जा रही थी। इंस्पेक्टर की गर्जदार आवाज पर हमजा के कदम खुद ब खुद एकदम से रुक गए। मिस्टर हमजा, हमने आपको मना भी किया था इस तरह कानून अपने हाथ, लेकिन आपको हर बात की बहुत जल्दी मची रहती है। इंस्पेक्टर साहब, जब कानून ही इतनी देर में रेंगता हुआ पहुंचेगा तो हमें खुद अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर ने अपनी ओपन बेइज्जती महसूस करते हुए हमजा की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए कहा, मिस्टर हमजा, आप बेकार की बहस से परहेज करते हुए मेरे पीछे आए। शायद आपको ये इल्म नहीं है कि हमारे अहलकार चारों तरफ से इस हवेली को अपने हसार में लिए हुए हैं। अब कोई भी मुजरिम इधर से फरार नहीं हो सकता। कुछ ही मिनट बाद इंस्पेक्टर और ये तमाम अफराद खानम के बताए हुए कमरे के बिल्कुल सामने मौजूद थे। कमरे के बंद दरवाजे को देखते ही हमजा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने तैश में आकर दरवाजे के लॉक को इधर से उधर घुमाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर हमजा, दूर हटें, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। इंस्पेक्टर अपने साथी अहलकार से दरवाजा तोड़ने का कहा। दूसरे ही लम्हे बस एक जानदार ज़रब से इस खस्ता हाल दरवाजे का काम तमाम हो चुका था। कमरे के अंदर जो हाल था उसे देखकर सोबिया बेगम की रूह तक कांप उठी। वो बुरी तरह चकरा गई। उन पर सन्नाटे की कैफियत तारी थी। मासूम, बेबस और बेकसूर इस प्यारी सी लड़की रेशम को वहशी दरिंदा साकिब अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़े अपनी हवस पूरी करने की कोशिश में लगा पड़ा था। इस हवस के पुजारी की नस नस से हैवानियत टपक रही थी। नीम बेहोशी की हालत में रेशम उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस घटिया पर तो जैसे शैतान सवार था। हमजा को इस तरह अचानक कमरे में देखकर साकिब के छक्के छूट गए। वो बदहवास होकर रेशम को अपने वजूद से अलग करता हुआ एक तरफ गिर गया। रेशम नीम बेहोशी की हालत में बेड पर बेसुध पड़ी सिर्फ एक बात ही दोहरा रही थी, छोड़ दे साकिब मुझे, तुझे अल्लाह का वास्ता। सोबिया बेगम से अब उस मासूम का यूं तड़पना सिसकना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो आंखों में आंसू भरे शफकत से चमकाते हुए उसे अपनी आगोश में समेट लगी। ये सब सूरत हाल देखकर साकिब घबराकर भागने की भरपूर कोशिश करने लगा, लेकिन उसी दौरान हमजा उसके गिरीबान को अपनी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ने लगा। किधर भाग रहे हैं आप दुल्हा राजा, अभी ससुराल भी तो जाना है। ये कहते हुए उसने जनाटेदार तमाचा साकिब के मुंह पर दे मारा, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया और उसका निचला होंठ बुरी तरह से फट गया। साकिब अपने मुंह से निकलते खून को हथेली से साफ करते हुए धारने लगा। आज तुमने तमीज, इखलाक और तहजीब के दायरे को पार करते हुए अपनी माँ के भाई और बाप जैसे मामों पर हाथ उठाया, वो भी इस मामूली सी लड़की के लिए। आफरीन है तुम पर बेटे, आफरीन है। साकिब आज रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी खुद को बहुत मोतबर साबित करने की कोशिश कर रहा था। बस घर जाएं, अब बस घर जाएं, बहुत हो गई आपकी ये ड्रामेबाजी, आप मेरे मामू हो ही नहीं सकते। ये तमाचा मैंने अपने मामू के मुंह पर नहीं बल्कि उस वहशी दरिंदे पर मारा है जो इंसान के रूप में शैतान है। ये तमाचा मैंने मुआशरे के उस नासूर के मुंह पर मारा है जो शरीफ और घरेलू लड़कियों को जबरन जिस्म फरोशी पर मजबूर करता है। ये तमाचा मैंने उस जानी के मुंह पर मारा है जो निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन से नजरें चुराकर अल्लाह और उसके रसूल की बनाई हुई हदूद को पार करता है।
इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इस मुजरिम को और इसके तमाम साथियों को और पाक कर दे इस मुआशरे को इन गलीज बेहया लोगों से, जो मासूम और बापर्दा लड़कियों को जबरदस्ती कोठे पर बिठाकर उनकी असमत का सौदा करते हैं और फिर हम में से बहुत से लोग इन्हें जिल्लत की निगाह से देखते हुए कभी नहीं अपनाते। जब साकिब ये देखने लगा कि अब उसकी दाल किसी सूरत नहीं गलेगी, तो वो सोबिया बेगम को इमोशनल ब्लैकमेल करने की एक आखिरी कोशिश करने लगा। वो गरजते हुए सोबिया बेगम से मुखातिब होते हुए कहने लगा, आपा, इतना सब देखकर आपका कलेजा नहीं फटा? यूं मुझे सबके सामने रुसवा किया जा रहा है और आप खामोश तमाशाई की तरह ये सब इतने इत्मीनान से देख रही हैं। वो वक्त याद करें जब आप जवानी में बेवा हो गई थी और हमजा यतीम, तो किसने आगे बढ़कर आपका साथ दिया था? ये सुनते ही सोबिया बेगम चिल्ला उठी, बेशरम, बेहया, रुसवा कर दिया तुमने मुझे सारे जहां में, तोड़ दिया मेरा मान, मेरा गरूर। अब तुम मेरे भाई कहलाने के लायक नहीं रहे। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा भाई इतना बड़ा बहरूपिया है। तुमने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ, ये सब कहकर सोबिया बेगम फूट फूट कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर ने साकिब और वहाँ के तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और हमजा रेशम को अपने घर ले आया। कुछ दिनों के बाद आज हमजा अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज कर रहा था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, परियों जैसी आन बान वाली रेशम अब हमेशा के लिए उसके नाम के साथ मंसूब होने वाली थी। सोबिया बेगम का दिल भी खुशी से मामूर था, क्योंकि आज उनका लाज पर सेहरा सजाए उनको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने जा रहा था। हर तरफ खुशियों का राज था। ये आलिशान महलनुमा बंगला बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। आखिर क्यों ना होता? इस घर के इकलौते वारिस हमजा के निकाह की तकरीब थी। बंगले के अंदर बाहर बहुत शोर और गहमा गहमी थी। निकाह और मुख्तलिफ रस्मों से फारिग होने के बाद रेशम को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। धड़कते दिल के साथ सीढ़ियां चढ़ते भारी जेवरात और अरूसी जोड़े में मलबूस रेशम ने सुर्ख गुलाब की पत्तियों पर रखे रोशन दिए देखे तो हल्की सी मुस्कुराहट उसके खूबसूरत लबों पर फैल गई। सीढ़ियों से लेकर कमरे तक का रास्ता हमजा ने खास तौर पर बहुत खूबसूरती से सजवाया था। उसे अपने दिल में भी सुर्ख पत्तियों की बरसात होती महसूस हो रही थी, जो उसे आने वाले वक्त में उम्मीद, सुबह बहारा की नवीद सुना रही थी। आज उसके लबों पर सिर्फ यही दुआ थी, या अल्लाह, हमजा के साथ मेरी जिंदगी का ये सफर उम्र भर का हो। उसने इस दुआ के बाद दिल ही दिल में आमीन कहा। खूबसूरती और नफासत से आरास्ता कमरे में फूलों से सजी सेज पर बैठी अपनी मेहंदी से रचे हाथों की लर्जिश को छुपाती धड़कते दिल से वो अपने हम सफर की मुंतजिर थी। दरवाजा खोलने की हल्की सी आवाज ने हर शय को साकित कर दिया था। रेशम ने मारे हया के जल्दी से बड़ा घूंघट निकाल लिया। हमजा ने बेड पर बैठते ही शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देखकर तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों निकाल लिया? और ये पर्दा किस खुशी में हो रहा है मुझसे? तुम क्या समझती हो, क्या मैं ये घूंघट उठाकर तुम्हारा दीदार नहीं कर सकता? ये कहते हुए हमजा ने बहुत प्यार से रेशम का घूंघट उठा दिया। रेशम ने बेइख्तियार आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी पलकों की लर्जिश उसके दिल का हाल बयान कर रही थी। हमजा ठटक कर उसके दिल फरेब हुस्न को देखता ही रह गया। रेशम, ये तुमने मुझे देखकर अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? सुनो, मैं तुम्हारी इन खूबसूरत समंदर जैसी गहरी आंखों में डूबकर फिर कभी उभरना नहीं चाहता। सलसल मुस्कुराकर उस शर्मीली सी लड़की को देख रहा था जो अपने ही वजूद में सिमटती जा रही थी। हमजा ने साइड टेबल के दराज खोलकर ज्वेलरी बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई। हमजा, मुझे आपसे ताहयात कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय एक गिफ्ट के। हमजा, आप मुझे कभी अपनी नजरों से गिरने नहीं दीजिएगा। ये सब कहते हुए उसकी गजाली आंखों से आंसू छलक पड़े। बस रेशम, अब एक भी आंसू और नहीं। हमजा ने रेशम के गुदास हाथों को थामते हुए कहा, तुम मेरी नजरों से कभी नहीं गिर सकती, क्योंकि तुम तो मेरी पलकों पे बैठी हो। तुमसे मिलने के बाद मैंने मोहब्बत की अजमत को समझा है कि कोई लड़की इतनी मासूम भी हो सकती है। तुम मेरी खुशी हो, मेरी जीने की वजह हो। मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में आने वाले तमाम खदशात को हमेशा के लिए दूर कर देगी।